what if one of the most vital organs of your body was failing without you even realizing it? Kidney disease is often called a silent disease because symptoms may not appear until significant damage has already been done. How do we recognize the warning signs before it's too late? Can kidney damage actually be prevented? And most importantly, how can awareness, timely diagnosis, and simple lifestyle changes help save lives? Welcome to Navya Samvad, where today we will go beyond medical jargons, statistics, to have honest and meaningful conversations about kidney health, dialysis, prevention, and hope. And to answer all our questions, we have us today Dr. Anurag Singh, a highly respected nephrologist and dialysis specialist from Prayagraj. Dr. Singh holds an MD in medicines and DM in nephrology and has been dedicated to the treatment and management of kidney diseases for several years. He is known for his expertise in dialysis care, diabetic kidney diseases, hypertension related kidney disorders, and advanced renal therapies. Widely respected for his compassionate patient care and commitment to spreading awareness about kidney health, Dr. Anurag Singh continues to guide and support countless patients and families through challenging health journeys. We are truly grateful to have him with us today on Navya Samvad. Hello everyone, I am Charvi Nigam, President, Inner Wheel Club of Allahabad, Navya. And I'm Ruchika Malik, Secretary of Inner Wheel Club of Allahabad, Navya. And today we are your hosts at Navya Samvad. Welcome, Doctor, to Navya Samvad. It is an absolute pleasure and a privilege to have you today with us to answer all your questions. Thanks, it's my honor to be here. Thank you so much. So, my first question to you is what exactly does a kidney do and why is it so important for us? Basically, first we must understand what's our body do. Basically, our body is just like a factory. It contains billions of cells and every cell is a functioning factory. So whenever there is a factory, there will always generation of waste product. तो जो waste निकलता है body में, जो हर second waste बनता है, वो filter out body से होना बहुत जरूरी है. तो the main function of kidney is to remove the waste from your body. All the waste that is generated in the body is basically dumped into your blood, and that blood goes into your kidneys. Kidneys filter it out, and it excreted in the form of urine. So basically, kidney acts as a filtration mechanism. It acts as a filter to remove all the waste products. The second important role of kidney is blood formation. ये लोगों को नहीं पता होता, बट किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है खून बनाना. इसलिए जब किडनी खराब होती है तो बहुत से पेशेंट्स को एक ही लक्षण आते हैं कि उनकी उसमें खून की कमी हो जाती है. तीसरा एक मैकेनिज्म है किडनी जो भी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट्स हैं कुछ है उसको बॉडी से बाहर निकालना. ये जरूरी नहीं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे आपने सॉल्ट ज़्यादा खा लिया तो जो सॉल्ट है बॉडी से वो किडनी बाहर निकालेगी. आपने खाने में कैल्शियम ज़्यादा ले लिया, फॉस्फोरस ज़्यादा ले लिया, या बॉडी में जो नेचुरल चीज़ें बन रही हैं या बॉडी को लग रहा है एक्सेस हो गया, वो किडनी के थ्रू ही बाहर जाता है. तो बेसिकली किडनी इज़ अ वेरी बिजी ऑर्गन. तो आप ये सारे ब्लड को फिल्टर कर दे रही है, प्योरीफाई कर दे रही है, फिर सिंथेटिक फंक्शन हो गया, ब्लड बनाने में हेल्प कर रही है. तीसरा ये इम्पॉर्टेंट है कि ये बॉडी में जो एक्सेस आप सॉल्ट खा रहे हैं उसको निकालती है. इसीलिए जब किसी किडनी नुकसान होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तो कहते हैं कि नमक कम खाइए, बिकॉज किडनी इज नॉट एबल टू फिल्टर आउट ऑल द एक्सेस सॉल्ट. इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपकी बोन ग्रोथ. बोन बेसिकली में कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, इसका लेवल भी किडनी से रेगुलेट होता है. तो इसीलिए किडनी इज बेसिकली अ टाइप ऑफ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ऑर्गन्स इन द बॉडी, एंड किडनी इज बेसिकली कनेक्टेड टू ऑल द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. तो इसीलिए जब बॉडी में कहीं कोई डिस्टर्बेंस होता है तो किडनी पे अल्टीमेटली इफेक्ट जाता है. तो मेन फंक्शंस यही हैं, बाकी तो माइनर फंक्शंस और है जिसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि बॉडी में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको बाहर निकालना, ब्लड सिंथेसिस करना, RBC जिसे बोलते हैं, और बॉडी में क्रिटिकल जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसको रेगुलेट करना, एक्सेस सॉल्ट को बाहर निकालना. तो ये सारे मोटे फंक्शन है किडनी के.
तो इसीलिए तो इसलिए किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी को हेल्दी रखने में। तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन अगर उसमें डैमेज होगा तो बॉडी में सारी चीज़ें डिस्टर्ब होने लगेंगी और आप बीमार हो जाएंगे। तो ये है चीज़ें जो किडनी पे ध्यान रखने पता ही की। नहीं था कि ब्लड फॉर्मेशन किडनी हाँ नहीं, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। बहुत सी इवन वी नो लॉट ऑफ केसेस कि उसमें इवन डॉक्टर्स को जो है खुद प्रॉब्लम हुई जब उनको खून की कमी हुई, तो डॉक्टर के पास गए दूसरे, तो उन्होंने से ब्लड टेस्ट किया है, खून की कमी थी, ब्लड हो गया, बट इन्हें किसी ने ध्यान नहीं खून क्यों कम हो रहा है। बाद में पता लगा कि दे वर सफरिंग फ्रॉम एडवांस रीनल फेलियर। वी हैव केसेस ऑफ pediatrician whose own children were suffering from bone deformities, poor bone growth, poor height. तो उन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, उन्होंने बोन की सर्जरी भी की एट सम वेरी हाई सेंटर। किडनी बहुत बॉर्डर नहीं था तो दे वर नॉट एबल टू डिटेक्ट। बाद में पता चला कि नहीं साहब ये तो किडनी की बीमारी सारा कुछ था। सो इट्स वेरी चैलेंजिंग थिंग कि बिकॉज समटाइम्स कि जब किडनी खराब होती है तो एक बच्चों में खासकर बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन होता है पुअर ग्रोथ, बोनी डिफॉर्मिटीज। तो ये एक चीज़ एस्पेक्ट ऐसा है जो काफ़ी नेग्लेक्टेड रहता है, क्योंकि सबको ही रहता है किडनी है तो उसका एक ही काम है कि जहर निकालना, बट किडनी का एक काम दूसरा काम आपके बॉडी में कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, खून बनाना। तो इट्स मल्टी फैसेटेड मल्टी डायमेंशनल फंक्शन ऑफ lot of functions are there for the kidneys to do. So it's a very busy organ. So डॉक्टर अक्सर हम किडनी को एक साइलेंट रिलीफर करते हैं, तो इसमें कॉमनली क्या है जो हम इग्नोर कर जाते हैं, जो सिम्टम्स हैं इनके? देखिए सबसे पहले तो जब भी किडनी डैमेज होती है इनिशियल स्टेजेस में बीपी बढ़ना बहुत से लोगों में। याद रखिए कि बीपी जो बढ़ता है बेसिकली इट्स इंट्रिंसिक डिफेक्ट ऑफ किडनी, वेदर आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है। 99% केसेस में बीपी तभी बढ़ता है किडनी में इंट्रिंसिक डिफेक्ट होता है कोई। वो इंट्रिंसिक डिफेक्ट है कि बॉडी एक्सेस सॉल्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही है, वो सॉल्ट बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। सॉल्ट एक्यूमुलेट होगा तो जब वाटर रिटेन करेगा तो बॉडी की ब्लड वेसल से प्रेशर बढ़ेगा। तो बॉडी वैसे एक टंकी है जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है, वहाँ से 15 लीटर पानी डाल देंगे और टंकी की वॉल से प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो इससे बॉडी में अगर सॉल्ट रिटेन हो रहा है ड्यू टू डिफेक्ट इन किडनीज तो बीपी बढ़ेगा। इसीलिए जब भी किसी का बीपी बढ़ता है तो पहली चीज़ कहते हैं नमक कम खाओ। और पब्लिक में मिसनॉमर ये होता है कि जब किसी का बीपी बढ़ता है तो सीधे वो सोचते हैं हार्ट में दिक्कत है, बट होती बेसिकली ज़्यादातर केसेस में इट्स ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट इनटेक। एक नॉर्मल हेल्दी आदमी आपने सॉल्ट ज़्यादा खा लिया तो किडनी ने निकाल दिया, बट अगर आपकी किडनी में इंट्रिंसिकली थोड़ा सा भी डिफेक्ट है तो सॉल्ट रिटेन होगा और वो बीपी बढ़ेगा। सबसे बड़ा तो बीपी बढ़ना है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ा सा भी जब जहर बढ़ता है तो वीकनेस, टायर्डनेस। अनफॉर्चुनेटली किडनी के कोई भी लक्षण ऐसे नहीं जो डायरेक्ट कहते हैं साहब किडनी पे ही असर है कि साहब किडनी स्पेसिफिक लक्षण है, वो बहुत लेट आते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में बीपी का बढ़ना, थकान लगना, पैरों में सूजन आना, वो भी इसीलिए क्योंकि आपने जो एक्सेस सॉल्ट लिया, वाटर लिया, वो पानी, फिर वो बॉडी में एक्सेस पानी भरा, वो पैरों में सूजन आ रही है। ये इनिशियल सिम्टम्स यही होते हैं। इसके अलावा जब और याद रखिए किडनी एक आइसोलेटेड ऑर्गन नहीं है। किडनी जब डैमेज होगी शुरू होगी तो हार्ट भी इफेक्ट करेगी, लंग्स पे भी इफेक्ट करेगी। मरीज की थोड़ी बहुत सांस फूलती है, इनिशियल होते है कि थोड़ा सा चलते समय मेरी सांस फूल रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो जो प्रिलिमिनरी में तो सिंपल हो सकता है, मरीज सिर्फ एक बहुत बोले मुझे थकान बहुत लगती है, टायर्डनेस, वीकनेस, लेथार्जीनेस, काम में मन नहीं लगता। और फिर अगर खून की कमी हो रही है तो फिर वही वीकनेस ही बताएगा, पैरों में सूजन। ये सारी इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जो अगर आपके अंदर कोई ऑलरेडी पहले से बीमारी चल रही है, डायबिटिक या हाइपरटेंशन, यू हैव टू वेरी कॉशियस कि नहीं साहब ये चीज़ें जो है पहले में देखना पड़ेगा। तो इनिशियल सिम्टम्स आर वेरी नॉन स्पेसिफिक बेसिकली। एडवांस स्टेजेस पे डेफिनेटली फिर बहुत सी चीज़ें आती हैं। बच्चों में विशेष ध्यान रखने की बात है, बच्चों में किडनी फेलियर जब शुरू होता है तो उनमें ग्रोथ उनकी इफेक्ट होती है। देन अर्ली चाइल्डहुड अगर बोनी डिफॉर्मिटीज़ हो रही है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो किडनी डिजीज़ के ये बिल्कुल देयर आर इनिशियल सिम्टम्स। बच्चों में किडनी डिजीज आप जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बोनी ग्रोथ बड़ों में क्या होता है, बोनी ग्रोथ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होती है तो उनमें डिफॉर्मिटीज़ नहीं होती, बट बच्चों में डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। तो अगर बच्चा है तो अगर बोनी डिफॉर्मिटीज़ हो रही है देन यू हैव टू गो, यहाँ साहब इसमें किडनी Any specific age limit of the child?
देखिए बच्चों की जो ग्रोथ होती है 12-14 साल तक होती है, एक बोन्स की जो फ्यूजन शुरू हो जाता है। बट जितना छोटा बच्चा होगा उसमें अगर दिक्कत आ रही है तो उसकी सबसे पहले बोन ग्रोथ इफेक्ट होगी। इवन बोन ग्रोथ के अलावा उसकी ओवरऑल हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको किडनी प्रॉब्लम है, तो उसकी एक ही सिम्टम होगी, डल रहेगा, ब्रेस्ट फीड नहीं अच्छे से करेगा, यूरिन का फ्लो अच्छा नहीं होगा। बट उसमें उसका यूरिया, क्रिएटिनिन या कोई ब्लड पैरामीटर्स ज़्यादातर केसेस में डिलेज नहीं होते इनिशियली, क्योंकि बॉडी में सटल से डिफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। फिर जैसे जब बड़ा होगा बच्चा, चलना शुरू की, फिर हड्डियाँ टेढ़ी होती जाएंगी, तो नी ज्वाइंट डिफॉर्म हो रहा है, इस तरह हो रहा है बड़ों में। बट मोस्ट कॉमन सिम्टम इज हाई ब्लड प्रेशर एंड स्वेलिंग ओवर फीड। दीज आर बेसिकली टेलटेल साइंस के जो आपको देखना चाहिए। बट कोई भी ऐसा साइन नहीं जो कहते नहीं साहब ये किडनी स्पेसिफिक ही है, क्योंकि सांस फूलना, ज़्यादातर किडनी पेशेंट की सांस फूलती है वो पहले जनरली रेस्पिरेटरी फिजिशियंस के पास जाते हैं, क्योंकि साहब की रेस्पिरेटरी फिजिशियंस पास जाते हैं क्योंकि सांस फूलनी चलने पे। और कुछ को जैसे भूख कम लग रही है, एपेटाइट पुअर हो रही है, तो गैस्ट्रो के पास जाते हैं, या चलने पे सांस फूलनी है, कार्डियो के पास जाते हैं। बट बेसिकली सारे जो हैं किडनी के सिम्टम्स हैं। अगर आपकी किडनी में डिफेक्ट हो रहा है और ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर नॉन बेसिकली बॉडी में कोई भी ऐसा किडनी जब गड़बड़ाएगी तो बॉडी के सारे तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो बट बेसिकली तो बच्चे हैं तो बोनी डिफॉर्मिटी, बड़े हैं तो हाई ब्लड प्रेशर, पैरों में सूजन, थकान लगना, डलनेस होना, भूख नहीं लगना। बहुत से लोग आपको एडवांस रीनल फेलियर में मिलेंगे जिनका यूरिया 200 के ऊपर है, क्रिएटिनिन 10 के ऊपर है। उनको एक ही लक्षण है, सब कमजोरी लग रही, भूख नहीं लगती और कुछ नहीं है। और ओल्ड एज है तो घर वाले अक्सर ही मान लेते हैं कि साहब ओल्ड एज है, घर में पड़े रहते हैं तो कहाँ से भूख लगेगी। और देखा तो साहब उनका बहुत खराब। कई बार कोई भी सिम्टम्स नहीं होती, ये भी याद है, कई बार कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। तो अगर आपको कोई न्यू ऑनसेट वीकनेस हो रही है देन यू मस्ट गेट योरसेल्फ, हाँ उसमें फिर आप कोई नहीं कर सकते कि नहीं ये गर्मी है, जाड़ा है, साथ में तो कि मौसम चेंज हो रहा है, इससे हो सकता हो। ऐसा नहीं कि वायरल इलनेस वाली फीचर्स हैं, बट मेनी टाइम्स इट्स एसिम्टोमेटिक और वेरी माइल्ड सटल सिम्टम्स आर देयर। देयर इज नो टेलटेल सिम्टम्स की जो आपको प्रेडिक्ट करें। कौन सी एज से हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किडनी हेल्थ अफेक्ट हो रही है? बाय व्हाट एज शुड वी गो टू दैट? देखिए अगर आपके घर में किसी को किडनी की बीमारी है तो बेसिकली कोई भी सिम्टम आए आपको करना ही करना है, फिर आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और सबसे सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन करा लिए, सबसे आसान है। अदरवाइज अगर आप डायबिटिक है सपोज करिए, और डायबिटिक के साथ इशू ये होता है हमारे यहाँ कि वो कोई भी आदमी रेगुलर चेकअप नहीं कराता, और आज आपको डायबिटीज़ पता चली तो सकता आपको कई सालों से डायबिटीज़ अंदर हो, आपको पता नहीं हो। तो अगर आपको डायबिटीज़ पता चली ये भी आज, तो आज ही उसी समय उसका किडनी पैनल्स वगैरह चेक कराइए, यूरिन चेक कराइए। आप पुराने डायबिटिक के मरीज हैं देन हर 6 मंथ्स में टेस्ट ज़रूरी हैं। तो आप ये नहीं सोचिए कि हमारे पास कोई लक्षण आएगा। अगर आपके घर में किसी को किडनी की बीमारी रही है, आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, या आपको बचपन में कभी किडनी कोई समस्या रही, तो अपना रेगुलर चेकअप जो है जितनी अर्ली एज से कराइए उतना बेटर रहेगा। नेचुरली डायबिटिक है तो 20-25 एज के बाद लोग जरूर। डायबिटिक एंड हाई ब्लड प्रेशर आर रिलेटेड? Basically majority of the patients of diabetics are suffering from high blood pressure. So these patients are very prone. India is basically diabetes capital of the world. We have the highest number of diabetes in the world. And almost 30% will develop renal failure. तो आप burden of disease देख लीजिए कितना है कि हमारे जो population है जो है। Is this because of lifestyle? हमारा जो है diabetes इतना high है? Basically Indians are genetically prone for diabetes. Firstly, genetically we are very prone for diabetes because of our racial configuration, and second is just lifestyle. Nowadays young obesity in young patients are very common. तो अगर आप जेनेटिकली प्रेडिस्पोज हैं, ऊपर से आपने डाइट फॉलो नहीं, अपना वेस्टर्न डाइट पे चाह रहे हैं ज़्यादा, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वेट ज़्यादा है, तो ये सब मल्टी फैक्टोरियल होते हैं जो मल्टीपल चीज़ें फिर आपकी डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट करेंगी और फिर किडनी डैमेज पे भी आ जाएंगे, क्योंकि 30% में किडनी डैमेज होगा। इंडियंस आर वेरी प्रोन फॉर डायबिटीज़, एंड इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, तो आप उसको एस्टिमेट कर लीजिए कितना आएगा। And US data is there कि 10% of their population is suffering from some amount of kidney disease. 10% is very huge number. तो there is a lot of criticism कि सब 10% बहुत ज़्यादा हो गया,
बट ये मानते हैं कि 1% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ किडनी डिजीज की जिसको देखना चाहिए। इंडिया में 150 करोड़ का 1% ही बहुत ह्यूज नंबर्स हैं, और उसमें से कुछ परसेंट जब अगर एडवांस रीनल फेलियर में जाएंगे तो फिर बर्डन ऑफ डिजीज बहुत ज़्यादा है। वाई किडनी फेलियर होती क्यों है डॉक्टर साहब? देखिए, मैंने बताया ना, किडनी क्या है कि एक तरीके का आपकी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट सब उसी से फिल्टर हो रहा है। तो ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो सब किडनी में जाएंगे। किडनी उसको फिल्टर करेगी, तो इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में किडनी का एक्सपोजर बहुत से टॉक्सिन से होता है, तो नेचुरली फिर वो किडनी को डैमेज करेंगे। एक बहुत बड़ा रीज़न हमारे यहाँ जो रीनल फेलियर का जो जल्दी नहीं ध्यान दिया जाता है, स्टोन्स है, जैसे पथरी। वी आर बेसिकली टेम्परेट क्लाइमेट कंट्री। तो अगर आपको पथरी बन रही है, आपका सॉल्ट इंटेक ज़्यादा है, पानी बहुत नहीं पी रहे हैं, तो आपको फिर धीरे धीरे पथरी बढ़ती जाएगी और किडनी डैमेज होगी। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सब पथरी बनी है, जब कोई दिक्कत होगी तब देखा जाएगा। फिर पथरी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। रीनल स्टोन इज ए साइलेंट किलर ऑफ किडनीज। मान लीजिए आपको 20 साल की जो आपको पथरी बनी, मान लीजिए पथरी पास हो गई, यूरिन से निकल गई, आपने होम्योपैथी दवा खाया, आयुर्वेदिक खाया, फिर आपने क्या सब भूल गया। 10 साल बाद जब आप आते हैं तो ढेर सारी पथरियाँ लेके आते हैं, और ज़्यादातर केसेस में पथरियाँ दर्द नहीं होती है। किसी को सर्जरी छोटी करानी हो तो आपने अल्ट्रासाउंड कर निकल गया। अभी कल हमारे पास पेशेंट था, उसकी राइट किडनी बिल्कुल ही जा चुकी है, उसमें पूरी किडनी में पत्थर ही पत्थर है। उसके मतलब किडनी के एक्सरे देखिए तो पत्थर 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 ही दिख रहे हैं। और उसने अल्ट्रासाउंड कराया था किसी दूसरे पर्पज़ के लिए, उसने शायद अपेंडिक्स वो गॉलब्लैडर सर्जरी होनी थी, तो ये उसने दोबारा एक बार कराया, तो उसने कभी देखा नहीं। तो उसने कहा 10 साल पहले मेरी किडनी पथरी थी, बट ठीक है, डॉक्टर का निकल गई। और उसका भी रीज़न ही हाई सॉल्ट इंटेक है। तो अगर आपको पथरी बन रही है तो पथरी बनेगी, तो 30% में जरूर रिकरेंस होगा, और आप सॉल्ट इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं तो पथरी बार बार बनेगी। तो पथरी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी कंट्री में, क्योंकि पथरी नेचुरली उसका तो किडनी को ब्लॉक भी कर सकती है, या उसको डैमेज भी करेगी, एलर्जी रिएक्शन करेगी, कोई भी फॉरेन बॉडी किडनी के खिलाफ रिएक्ट करेगी, या पत्थर जाके फंस गई। तो दूसरा एक रीजन जो हमारे यहाँ जो हम लोग ध्यान नहीं देते वो है हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। और बेसिकली क्या होता है कि हमारी एक सोसाइटी में है कि हम अपना घर साफ रखें, कूड़ा बाहर डाल दें। डेंगू ये सब जारी जितने हमारी कंट्री में ना, बाहर तो इतना होता नहीं है। और इससे जितनी बीमारी, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी में, अब इन्फेक्टेड पानी पी रहे हैं, 10 में हो रहा है तो 10 में किसी में दिक्कत हो जाएगी फिर। तो जो एनवायरनमेंट हम लोग अपना गंदा रखते हैं, जिसके लिए पब्लिक ही जिम्मेदार है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जो हमारे यहाँ का जो सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स, हमारे घरों में बहुत सफाई रहती है, घरों में बहुत सफाई है, सबके यहाँ रहती है, आदमी घर का कूड़ा बाहर डाल रहा है। जो बाहर बैक्टीरिया वायरस है उनको थोड़ा बाउंड्री वॉल के बाहर ही रहना, तो आपके घर में भी आएंगे ना। इसी तरह जो है सीवेज कंटेमिनेशन वाटर पाइप्स का है, तो ये सारी चीज़ें तो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। तो वो अल्टीमेटली सारी चीज़ें बॉडी में जाएंगी तो किडनी को इफेक्ट करती हैं। जैसे आपको डेंगू का सीजन आएगा अभी, तो डेंगू इज बेसिकली मैन मेड डिजास्टर ना। डेंगू का तो बाकी दुनिया में बहुत जगह नहीं होता, डेवलप कंट्रीज में। तो डेंगू के 10 मरीज इफेक्ट होते हैं, किसी की किडनी भी खराब होती है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और हमारे एक बड़ा रीज़न है खासकर जो अनसेफ डिलीवरीज, व्हाट वी फाइंड कि ज़्यादातर जो डिलीवरीज हो रही हैं लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में, अगर वो बहुत हाइजीनिक सेटअप में हो रही है तो उसमें इन्फेक्शन बहुत होता है, और उसमें किडनी डैमेज भी बहुत बुरी तरह होती है। इट्स वेरी सैड पार्ट, बट एंड मेनी ऑफ दिस पेशेंट डाई। ये सब चीज़ें ऐसी जो सिर्फ हम लोगों के यहाँ ज़्यादा होती हैं। ये तो है जो है। इसके अलावा फिर डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ आप हाई शुगर है, हाई शुगर से जब किडनी पे हाई शुगर जाता है तो बॉडी इसके खिलाफ, किडनी उसके खिलाफ रिएक्ट करती है। किडनी का काम क्या है कि जो भी एक्सेस चीज़ फिल्टर हो रही है, अगर वो क्रिएटिनिन यूरिया नहीं है, टॉक्सिन्स नहीं, तो उससे किडनी खींच लेती है, बाकी बॉडी में वापस डालती है। तो शुगर को भी एज ए नॉर्मल चीज़ ट्रीट करके जब वो सक करती है वापस बॉडी में भेजती है, तो इसमें किडनी खराब होती है। तो हाई बीपी, डायबिटीज़, ये सबसे प्रोमिनेंट कॉजेज हैं किडनी डिजीज़ की। और 1/3 जैसे बताया कि किडनी खराबी हो रही है, तो एक ये तो मेटाबॉलिक कॉजेज हो गए कि बेसिकली हाई शुगर, हाई बीपी,
obesity is very bad thing. Obesity is a very important cause of kidney disease. बिकॉज किडनी में मान लीजिए अभी किडनी आपका आइडियल वेट 60 किलो है, तो किडनी भी भगवान ने अभी 60 किलो के हिसाब से बनाई है, तो आप 80-90 किलो के हैं तो लॉट ऑफ रिएक्शंस आर देयर। किडनी को एक्स्ट्रा, बेसिकली किडनी एक्स्ट्रा काम करती है, जब एक्स्ट्रा काम करती है तो फिर किडनी धीरे धीरे फेल कर जाती है। डॉक्टर एक चीज पूछनी है, उसके डायलिसिस क्या होते हैं और इसके क्या प्रिवेंशन, मतलब पेशेंट कैसे इसको वो करता है? देखिए डायलिसिस, पहले तो एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि डायलिसिस एक बार शुरू होगी तो हमेशा चलेगी, तो बड़े बेसिक है कि साहब एक बार डायलिसिस हो गई तो हमेशा चलेगी। तो याद रखिए डायलिसिस किडनी को ठीक नहीं करती है, डायलिसिस इज सिंपली सपोर्ट मैकेनिज्म। जैसे मैंने कहा किसी को इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, उससे किडनी डैमेज हो गई, तो जो इन्फेक्शन से किडनी डैमेज हो रही, हो सकता है किडनी रिकवर करे, मान लिया 10 दिन में किडनी रिकवर करेगी, बट बॉडी में टॉक्सिन्स तो हर सेकेंड बन रहे हैं ना, तो टॉक्सिन बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, तो डायलिसिस का काम उस जहर को निकाल देना। तो वो टेम्परेरी डायलिसिस होती है, 2-3-4 डायलिसिस की, तब तक एंटीबायोटिक्स वगैरह अपना काम है, पेशेंट रिकवर कर जाता है। तो उस कंडीशन में होते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर, वी कॉल इट एक्यूट किडनी इंजरी और एक्यूट रीनल फेलियर। इन पेशेंट्स में ज़्यादातर केसेस में डायलिसिस टेम्परेरी होती है, केवल 3 बार 4 बार 5 बार हुई, फिर वो यूरिन आने लगा, किडनी रिकवर कर गई। तो इन पेशेंट्स में डायलिसिस इज लाइफ सेविंग एंड इट्स टेम्परेरी प्रोसीजर। जैसे डेंगू भी आएगा, डेंगू आया तो 10 में किसी की किडनी खराब हो गई, जब तगड़ा डेंगू हुआ, तो अगर आप डायलिसिस नहीं करोगे तो फिर जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटर कहाँ जाएंगे। तो डायलिसिस का सिंपल काम है कि डायलिसिस में बेसिकली इतने का फिल्टर होता है, उसके थ्रू ब्लड जाता है, एक तरफ उसमें हाईली प्यूरिफाइड वाटर जाता है, तो ब्लड की गंदगी क्लियर हो जाके इसमें चली जाती है, जो वाटर है फिर वेस्ट में चला जाता है। तो डायलिसिस का बेसिक काम है ब्लड से फिल्टर आउट करना। और याद रखिए डायलिसिस ब्लड में जो भी एक्सेस है सब फिल्टर आउट सब निकालेगा। तो डायलिसिस की क्वालिटीज़ के भी अपने इश्यूज होते हैं, बट मेन काम डायलिसिस का है किडनी को सपोर्ट देना, न किडनी को ख़राब करेगी न किडनी को ठीक करेगी। और अगर आपकी किडनी परमानेंट डैमेज है कि मान ली किडनी अब काम ही नहीं कर रही, देन यू हैव टू गो फॉर रेगुलर डायलिसिस। अब ज़्यादातर लोगों में बहुत मिसकॉन्सेप्शन, ज़्यादा डायलिसिस कराएंगे तबीयत खराब हो जाएगी, बट आप उल्टा सोचो कि आप ही किडनी हर सेकेंड काम कर रही है ना, ऐसा थोड़ी किडनी 2 दिन काम की 2 दिन सो गई। पर डायलिसिस नेचुरली 24 घंटे करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए एक ट्रेड ऑफ होता है कि साहब डायलिसिस आप हफ्ते में 15 घंटे का आइडियल होना चाहिए, 12 से 15 घंटे। 5 आवर्स डायलिसिस शेड्यूल फॉर थ्राइस अ वीक, 15 घंटे हो गया, या 4 आवर्स थ्राइस वीक 12 आवर्स हो गया। जब आप 12-14 घंटे की डायलिसिस हफ्ते में कराते हो तो नॉर्मल किडनी का 10% फंक्शन सिर्फ अचीव होता है, और ये मानते हैं 3-4% अभी किडनी काम करी, तो मिला के एक जो 12-14% जो किडनी फंक्शन अचीव हो जाता है, दैट्स सफिशिएंट फॉर लाइफ। और जो और अच्छी डायलिसिस करें, डेली करें डायलिसिस, दैट विल बी मोर फिजियोलॉजिकल। तो डायलिसिस से मॉनिटर हो जाता है कि कितना हमारा हाँ जहर भाई बॉडी में जहर डेली बना, डेली डायलिसिस करो ज़्यादा अच्छा है, बट आप 2 दिन छोड़ कराओगे, जो एक्यूमुलेट हो गया फिर सडनली आप निकालते हैं। तो अब जो बहुत सी जगहों पे जो जहाँ पे लोग अफोर्डेबिलिटी की इशू है, अगर आप डेली डायलिसिस करा रहे हैं या 4-5 टाइम्स वीक करा रहे हैं, तो दे आर डूइंग वेरी गुड, देयर रिजल्ट्स आर एज गुड एज ट्रांसप्लांटेड एंड नियर नॉर्मल लाइफ वो लोग लीड करते हैं। तो डायलिसिस इज विथ एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज विथ बेटर वाटर क्वालिटी, तो डायलिसिस इज लाइफ सेविंग एंड समटाइम्स इट कैन कंटिन्यू अप टू 25-30 years। ऐसा नहीं कि इन जापान dialysis results are very good. Even in our countries, many patients are doing good dialysis. Many patients deteriorate on dialysis not because of kidney disease, because they are suffering from other problems. Cardiac है, neurology problem हो गई, तो there are multiple things. But मोटा मोटा ये कि डायलिसिस का काम है, आपके बॉडी में एक्सेस जहर एक्यूमुलेट हो रहा है बिकॉज किडनी का काम नहीं कर रही, तो डायलिसिस फिल्टर आउट हो जाता है। ये डायलिसिस का मेजर काम होता है। जो एक पेशेंट जो लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे है, उसका कितना पॉसिबल है एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीना, वर्क करना, कहीं घूमने जाना? देखिए आजकल क्या है ना कि डायलिसिस सेंटर्स हर जगह हैं। गवर्नमेंट की भी से हमने कहा कि बहुत अच्छा रोल रहा है कि उन्होंने पीपीपी मॉडल पे बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट कंपनीज को दिया है, तो मशीन रन करती है जहाँ गवर्नमेंट पे करती है, एंड दे आर डूइंग एडिक्वेट डायलिसिस, ऐसा नहीं कि। और नेचुरली प्राइवेट सेटअप का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। आजकल ज़्यादातर बड़े शहरों में लोग डायलिसिस कराते हैं। और इवन जब कुंभ मेला हुआ था
तो बहुत से पेशेंट्स हमारे आए थे कि साहब हम कुंभ में नहाने आए हैं, हम आपके यहाँ डायलिसिस 2 सेशन हम कराएंगे। तो अब अगर आप रेगुलर डायलिसिस करा रहे हैं और ठीक से करा रहे हैं तो आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। पहले बार जहाँ पे डायलिसिस हो रही है अपॉइंटमेंट ले लीजिए और डायलिसिस होती रहेंगी। बहुत बार होता है कि आजकल तो लोग बहुत मूव कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों में ऐसी घूमने फिरने की काफ़ी हो गई है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन पीजीआई, तो हमारे पास एक पेशेंट हमें याद है जर्मनी से आए थे कि साहब वो वर्ल्ड वाइड घूमते थे, शेड्यूल ले लिया था उन्होंने। तो हम लोग लगता था कभी कभार वाली चीज़ है, बट अब देखते हैं कि हमारे यहाँ तिलावा बहुत से लोग आते हैं जो बाहर से आ रहे हैं, शादी में आ रहे हैं, शादी पार्टी सारे फंक्शन लोग आते हैं। तो सोशल जो एक्टिविटीज़ है डायलिसिस पेशेंट्स की वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। बट वही है कि फिर आप डायलिसिस ठीक से कराइए। तो ज़्यादातर लोग जो आजकल लकीली मिस इन्फॉर्मेशन अब काफ़ी कम हो गया है, तो लोग जो हैप्पीली एक्सेप्ट करें डायलिसिस, दे आर डूइंग वेरी गुड, वो सब कुछ कर रहे हैं। और एवरेज मतलब ऐसा तो नहीं बता सकते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी वी आर सीइंग पेशेंट्स अंडरगोइंग डायलिसिस फॉर लास्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स जो ठीक कर रहे हैं अभी। बट ये कि नेचुरली एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, बट गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा फंड्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है। एंड इन मेनी स्पेशली इन मुंबई एंड पंजाब, देखिए वैसे तो बहुत कॉमन नहीं होती है बच्चों में किडनी डिजीज़ होना, बट ऐसा नहीं कि नहीं होती है। एक तो जो बड़ों में जो भी बीमारियां सारी हो सकती है बच्चों में, कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिकली बच्चों में होती है, जैसे बच्चों में कई बार किडनी में एलर्जीज होती हैं, उनसे किडनी खराब हो सकती है। इसके अलावा कई बार कुछ बच्चों का जब माँ के पेट में डेवलपमेंट होता है किडनी में, तो कई बार उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। फॉर्चुनेटली आजकल चूँकि सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स के अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में पहले ही पता चल जाती है कि डिफेक्ट है इनमें। तो खासकर मेल चाइल्ड में किडनी के डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि उनका जो ओवरऑल यूरिनरी ट्रैक्ट है वो लंबा होता है, उसमें और भी इश्यूज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हो सकते हैं। और याद रखिए बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं बड़ों से थोड़े अलग होते हैं। जैसा पहले मैंने डिस्कस किया था कि बच्चों में मेन सिम्टम्स होंगे डलनेस होगी। बहुत छोटे बच्चे, मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ 2-3-4 दिन का है, यूरिन नहीं कर रहा है, फ्लो नहीं अच्छा है, खासकर मेल चाइल्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर रहा है, इसे कहते हैं बहुत ज़्यादा कांखता है पेशाब करने में, देन इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग कि आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए, मेल चाइल्ड में खासकर। अगर ऐसा है तो उसको तुरंत फिर आप वर्कअप करें। तब ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा बच्चा है, अरे अभी मैं थोड़ा होने दो। और लैक ऑफ ग्रोथ, कि बच्चा पनप नहीं रहा है, पैदा हुआ था 2 किलो का था बट अब उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो वो भी एक साइन होता है कि किडनी उसकी ख़राब हो रही है। हो सकता है कॉजेज़ तो और भी है, हार्ट के भी इश्यूज होते हैं जो करते हैं, किडनीज में होते हैं ये चीज़ें। फिर फीड नहीं ठीक से ले रहा है, तो ये जो सटल जो सिम्टम्स होते हैं वो कई बार किडनी डिजीज़ में होते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, बच्चा चल नहीं पा रहा है ठीक से, उसकी हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हैं, ये भी किडनी डिजीज़ के हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ऐसा होना नहीं चाहिए। या बच्चे का हड्डी भी ठीक ग्रो कर रहा है बट उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली ज़्यादातर इनके हैं पुअर डेवलपमेंट, ग्रोथ रिटार्डेशन, बोनी डिफॉर्मिटीज़। ये 3 चीज़ अगर किसी बच्चे में हो रही तो उसमें किडनी डिजीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और आजकल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि जेनेटिक डिजीज़ेस, कि किडनी की बीमारी परिवार में तो नहीं रन कर रही हैं, वो कई बार होता है जिसको हम ध्यान नहीं देते। इस पर आजकल बहुत फोकस है हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में कि उस पर क्या है तो ये सारी चीज़ें इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक सेगमेंट एक चीज़ होती है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो परिवार में रन करती हैं। एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, हम लोग उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ADPKD बोलते हैं। ये कॉमनेस्ट जेनेटिक डिजीज़ है ओवरऑल, नॉट ओनली इन किडनी, ओवरऑल इन ह्यूमन्स जो है। इसमें माँ बाप में किसी एक को 50% चांसेस है बच्चों में होने की। तो अगर परिवार में किसी को किडनी डिजीज़ रही है, अगर आपको कॉज नहीं पता है तो भी आपको एक बार बच्चों में, फिर उसको बच्चों में तो नहीं, थोड़े बड़े होने पे ही होता है, बट यू हैव टू लुक फॉर इट। तो ये चीज़ें हैं कि जो अक्सर नेग्लेक्ट होती हैं। बच्चों में क्या, अगर आप बचपन में ही अगर आप किडनी डिजीज़ डायग्नोज करते हैं और उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे मान लीजिए, तो फिर बच्चों की हाइट कम हो जाएगी, उनकी बोनी डिफॉर्मिटीज है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड नाउअडेज बच्चों में भी डायलिसिस सुविधाएं रहती हैं, ऐसा नहीं बच्चों को डायलिसिस हो सकती, बट हम लोग प्रेफर करते हैं बच्चों में किडनी ट्रांसप्लांट करा दिया जाए, क्योंकि ट्रांसप्लांट की फिर और भी एडवांटेज होती है कि आपको नेचुरल किडनी मिलती है, तो उससे और भी हार्मोन्स निकलते हैं, जो बताया था कि किडनी का काम है
कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना है सब चीज़ें, तो बच्चों में डेफिनेटली ट्रांसप्लांट इज़ मच बेटर ऑप्शन देन डायलिसिस। बट अगर ट्रांसप्लांट नहीं ऑप्शन है तो डायलिसिस पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बाद में ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली बच्चों में किडनी बीमारियाँ होती हैं और खूब होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। इट्स नॉट सो अनकॉमन। So, Dr. Saab, what regular health checkups should an individual go for, or does it help us to undergo regular health checkups? देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं तो सबसे सिंपल टेस्ट है यूरिन में एल्बुमिन का चेक करना। वी कॉल इट यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, UACR या माइक्राल टेस्ट। सबसे सस्ता टेस्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम लोग जो डायबिटिक होते हैं जो लोग, तो सिर्फ एक ही टेस्ट कराते हैं, शुगर टेस्ट, कि साहब शुगर मेरा ठीक चल रहा है। या तो ये क्रिएटिन बहुत लेट बढ़ता है। जब आपकी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो सबसे पहला जो साइन आता है वो आता है यूरिन में एल्बुमिन निकलना शुरू हो जाएगा विदाउट एनी सिम्टम्स। जब कई सालों तक एल्बुमिन निकलता रहेगा तब जाके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो अर्लीस्ट टेस्ट जो करना चाहिए वो यूरिन में एल्बुमिन का डिटेक्शन जरूरी है। वी कॉल इट माइक्राल टेस्ट। और ये रिकमेंडेशन ही है, अगर कोई डायबिटिक न्यूली डायग्नोज है, आज ही आपको डायबिटीज पता है, आप एडल्ट हैं, तो आपको उसी समय यूरिन जरूर टेस्ट कराना चाहिए। कुछ चीज़ें देखते हैं, फीवर नहीं होना चाहिए उस समय, वो तो अलग तो डॉक्टर्स बता ही देंगे आपके। तो यूरिन में एल्बुमिन का टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे सस्ता टेस्ट है और सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड भी यही है। क्योंकि आपको बहुत लोग मिलेंगे शुगर रेगुलर टेस्ट करा रहे हैं, यूरिया क्रिएटिनिन भी शौक में करा रहे हैं, बट यूरिया क्रिएटिनिन बहुत लेट बढ़ेगा। सबसे पहले अर्लीस्ट साइन इज यूरिन में एल्बुमिन, एबनॉर्मल क्वांटिटी में एल्बुमिन का जाना, तो ये सबसे अर्लीस्ट है। दूसरा है कि आप अगर ये स्टेज आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, फिर 8-10 साल बाद फिर आपका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा देन इट बिकम्स ऑलरेडी यू हैव मिस्ड द बस, आप ऑलरेडी 10 साल आप खो चुके हो। तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो चेक करिए, बीपी रेगुलर चेक करते रहिए। इनसे काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा। इवन और भी डिजीजेज हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट कॉजेज, बट एल्बुमिन को देखना सबसे ज़रूरी है। नेचुरली जब एक बार एडवांस स्टेज हो गया तो यूरिया भी बढ़ेगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, बीपी बढ़ रहा है, देन सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो किडनी डिजीज़ अगर आप सस्पेक्ट करें तो डोंट लुक फॉर सिम्टम्स बहुत लेट आए। तो सबसे कॉमन, चूँकि हमारे कॉमनेस्ट कॉज डायबिटीज़ है, तो यूरिन एल्बुमिन देखते रहिए। यूरिन एल्बुमिन अगर आप नहीं ला रहा है इसका मतलब ये किडनी आपकी सेफ है, बट यूरिन एल्बुमिन आना शुरू हो गया तो देन इट मीन्स किडनी इफेक्ट हो गई है। और याद रखिए, अगर यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है तो आपकी किडनी में नुकसान पहुंच रहा है, तो सिर्फ किडनी नहीं नुकसान हो रहा है, वो उसका असर हार्ट पे भी जा रहा होगा। पर 6 months टेस्ट कराना ठीक है? या 6 months इज गुड इनफ। फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल अगर आप करा रहे हैं उसमें यूरिन एल्बुमिन आ रहा है, देन फॉर्चुनेटली आजकल कुछ नई मेडिसिन आ गई हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। तो सबसे सिंपल टेस्ट यही जो हर डायबिटिक को, इवन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को कराना चाहिए, तो जिसे आप अर्लीस्ट डिटेक्ट कर सकते हो। डोंट वेट फॉर सिम्टम्स की। जब अक्सर लोगों को ये होता है डायबिटीज़ हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने कोई टेस्ट नहीं कराया, 10 साल बाद सीधे रिपोर्ट लेके आते क्रिएटिनिन 3 हो गया, 4 हो गया, देन वो उनको होता है साहब हमारी डिजीज़ को कुछ करिए, कुछ ऐसी दवा दीजिए जी चीज़ें रिवर्ट हो जाए। तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप 10-15 साल आपका समय चला गया है। और बॉडी में किडनी 2 होती हैं, दोनों बहुत मजबूत ऑर्गन्स होती हैं। जब सस्टेन्ड नेग्लिजेंस होती है तभी वो फेल करती है। तो इसीलिए सभी डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव जो सबसे कॉमन है, और अगर आप स्टोन फॉर्म आपको बनता है तो नीचे आप अल्ट्रासाउंड कराते रहिए। डोंट लुक फॉर सिम्टम्स। किडनी में सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, सिम्टम्स आना तो बहुत लेट हो गया। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि हाँ हमें, और रेगुलर चेकअप कराइए। ऐसा नहीं कि साल में या 2 साल 4 साल बाद चेकअप कराइए। तो डॉक्टर, सिंपल जो हैबिट्स हैं, सिंपल हेल्दी हैबिट्स, जिससे हम अपने किडनी को हेल्दी रख सके लॉन्ग टर्म के लिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, बेसिकली ओवरऑल हेल्थ स्टाइल पे, हमारा जो लाइफ स्टाइल उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे नमक कम खाइए, नमक कम खाने से बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, बीपी कंट्रोल रहेगा और भी दिक्कतें कम होगी। दूसरा, खाने में फ्रेश फ्रूट्स लीजिए। फ्रूट्स में पोटेशियम होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, वो भी आपकी एक तरह से रीनल प्रोटेक्शन करती हैं। नॉट इन एडवांस रीनल फेलियर, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी पीपल। लो सॉल्ट डाइट लीजिए, फलों का सेवन करिए, ट्रांस फैट्स और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड मत लीजिए, जिसमें सॉल्ट से बहुत होता है। नेचुरल सोर्स बेटर है। और रेगुलर एक्सरसाइज करिए, स्मोकिंग अवॉइड करिए। Smoking is a very big factor. So, doctor, these days we've started doing self-medication and such things.
What are those certain medicines जो हम unknowingly लेते हैं that may affect us with our kidney health? देखिए, सबसे पहले तो NSAID से पेन किलर्स, जिनके बारे में है कि पेन किलर्स कम से कम लेना चाहिए. स्पेशली देखिए, इट्स वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट चॉइस फॉर द पेशेंट. स्पेशली अगर थोड़ा सा ओल्ड एज फीमेल्स में खासकर क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो अगर आपने डॉक्टर को दिखा दिया तो उन्होंने आपको दे दिया दवा, तो NSAIDs खासकर क्विक रिलीफ देते हैं, बट वो बहुत लॉन्ग टर्म मेरी किडनी आपकी डैमेज करते हैं. दूसरा, अगर आप क्वैकरी बहुत कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें अक्सर स्टेरॉइड बहुत मिल जाता है लोगों को, तो उससे इमीडिएट रिलीफ तो होता है, उसमें नो डाउट है, बट वो लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान करता है. पेन किलर्स खासकर बहुत अवॉइड करने चाहिए और अननेसेसरी के पाउडर्स वगैरह नहीं लेने चाहिए. दूसरी चीज़ है कि एंटीबायोटिक्स का यूज़, हमारे एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पेशेंट सबकी जिम्मेदारी है उतनी. तो जब आप एक्सेस कोई भी दवा लेते हैं तो भी किडनी में कोई भी किसी की एलर्जी हो सकती है. तो डोंट टेक मेडिसिन विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन एंड विदाउट गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर. किडनीज आर वेरी सटल साइंस ऑफ डैमेज. आपने NSAIDs खा लिया, आपने एंटीबायोटिक्स ले लिया, सारी चीज़ों किडनी को आपके नुकसान पहुंचा दिया. तो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए. पेन किलर्स बिल्कुल अवॉइड करिए, अननेसेसरी के आप पाउडर्स मत लीजिए कि जो किडनी को नुकसान करें. एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और हमारे यहाँ एंटीबायोटिक मिसयूज इज वेरी बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम. तो इससे तो थोड़ा सा कि आपको प्रोटेक्शन रहेगा. और दूसरा ये कि कई बार जो चाइनीज़ हर्ब्स वगैरह आती हैं, बहुत पहले चाइनीज़ हर्ब्स बहुत यूज़ करते थे लोग स्लिम होने के लिए, उसमें एरिस्टोकोलिक एसिड मिला होता था. तो वेव ऑफ किडनी डैमेज, जब उसकी बायोप्सी की गई किडनी के रेशे, तो पता चला कि उसी हर्ब से थी. तो एरिस्टोकोलिक एसिड नेफ्रोपैथी उसका टर्म ही पड़ गया. देयर आर मेनी अननोन थिंग्स जो हमें अगर मिली हुई है तो आपको पता नहीं चलेगी. तो डोंट गो फॉर एग्जॉटिक थिंग्स. तो वो चीज़ लीजिए जिसका आपको पता है कि इसमें क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों के नुकसान करने की संभावना कम होती है. क्योंकि आपने कई बार कोई ऐसे पाउडर ले लिया जिसमें हैवी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, वो जैसे आप जो प्रोटीन पाउडर्स वगैरह हैं, वो भी दीज आर आल्सो हार्मफुल. देखिए, एज सच तो नहीं है. अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं, सपोज करिए आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, नेचुरली नीड गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन. आइडियली तो उसमें इतना रिकमेंडेशन नहीं है अगर आप डाइट में नॉर्मल ले रहे हैं, बट अननेसेसरी आप जो भी प्रोटीन लेंगे वो किडनी में प्रेशर डालेगी, बिल्कुल डालेगी. तो अब आप यंग हैं, सपोज करिए आप अच्छा इंटेक ले रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, तब प्रोटीन लेने में कोई बुराई नहीं, बट उसका बहुत जरूरत पड़नी नहीं चाहिए अंटिल आप प्रोफेशनल हो. यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, स्पेशली दोज लाइक प्रोटीन पाउडर्स, प्रोटीन, ये देखिए, इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट एज सच कोई बेनिफिट नहीं है. व्हाई वी वांट टू टेक. अगर आप खाना पीना खा रहे हैं तो व्हाई यू डोंट वांट टू जस्ट ओवरलोड योर बॉडी विद प्रोटीन. वो भी. और अगर आपको लेना है तो फिर आप एक प्रॉपर डाइटरी काउंसलर से एडवाइस से लीजिए, देखिए क्या ज़रूरत है क्या नहीं है. कई बार क्या होता है कि लोग लेते हैं, फिर वो सडन प्रोटीन सर्ज होता है, बॉडी को बहुत नुकसान करता है. और दूसरा, समर्स में एक और चीज़ है कि आपको अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. खासकर जो लोग, कई बार केसेस आते हैं, जो लोग खासकर पुलिस में, PSC में, आर्मी में एडमिट होते हैं, सडनली रनिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सडनली आपने रनिंग करना शुरू किया, आपकी बॉडी कस्टम नहीं है, सडनली डिहाइड्रेशन हो गया और आप अननेसेसरी दौड़ रहे हैं. इवन जिम्स में भी है, बहुत हैवी वेट है, ज़बरदस्ती उठा रहे हैं, तो उससे क्या होता है आपकी मसल में डैमेज होगा, मसल फैटिग होगा, मसल डैमेज होगा. तो मसल्स के अंदर भी जो टॉक्सिन्स होते हैं, बेसिकली वो टॉक्सिन्स नहीं होते, बट उनका काम मसल के अंदर है ना, मसल के बाहर निकलते दे एक्ट एज ए टॉक्सिन, वो किडनी में जाते हैं, किडनी डैमेज करते हैं. तो ऑफ एंड ऑन समर्स में बहुत केसेस देखने को मिलते हैं कि अगर आप बहुत हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है तो फिर बेसिकली एक फैक्टर नहीं होता, आपने एक्सेस प्रोटीन सपोज कर ले लिया, डिहाइड्रेशन हो गया, मसल इंजरी बॉडी में हो गई, तो ये ऑल दीज लिंक्स टू अल्टीमेटली लीड्स टू समटाइम लीड्स टू किडनी डैमेज. आजकल ओजेम्पिक भी बहुत कॉमनली यूज की जा रही है, अभी तो काफी नॉर्मल लोगों में भी देखा जा रहा है. देखिए, ओजेम्पिक एज सच इज अ गुड ड्रग, देयर इज नो हार्म, बट इट शुड बी given under doctor's supervision. It's a good drug for diabetes control, for weight loss, but it's not a magic bullet. There are certain contraindications जो नहीं देना चाहिए कुछ लोगों में, वो भी ध्यान रखने की जरूरत है. But overall it has a good results, especially for diabetic. If you are obese, nowadays non-diabetic, आपको diabetes नहीं है, obesity है, तो भी ले रहे हैं, उसके results उसमें भी अच्छे हैं.
बट वही है कि जब तक डॉक्टर से सलाह न लें मत लीजिए, क्योंकि पता चला कुछ सालों बाद क्योंकि नहीं सब मेडिसिन वी डोंट हैव, इवन इन मेडिकल साइंस वी डोंट हैव मच डेटा अबाउट इट. न्यू मेडिसिन हैं, कुछ ईयर्स हुए हैं, तो कुछ सालों बाद क्या होगा नहीं पता. बट हाँ, नेचुरली फॉर द टाइमिंग दे आर सेफ, बट इट शुड नॉट बी टेकन एज लेफ्ट एंड राइट. डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं. As such, they are very good drug for weight reduction and diabetes control. They are good drugs, and they are good for your kidneys also. So before we conclude this nice session with you, doctor, what would you suggest हमारे viewers के लिए कि हमको क्या precautions लेने चाहिए ताकि हम अपना healthy lifestyle करें, kidney ताकि हमारी healthy रहे आगे के लिए? देखिए, इसमें कुछ बहुत अलग सा नहीं करना है. वही सारी चीजें डिस्कस हुई हैं. गो फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक सिंपल, कीप द थिंग्स सिंपल. जैसे आपने बोला कि हेल्दी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स. बेसिकली हमारे यहाँ जो हम लोग की कल्चरल, वो भी हम लोग डाइट में आजकल सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं. फॉरेन में खाना बनता है, उसके ऊपर अलग से सॉल्ट अपना डालते हैं, तो उनको आइडिया होता है कितना डाल रहे हैं. आप स्पाइस भी डाल लें तो उसका सॉल्ट और ज़्यादा हो जाता है. तो लो सॉल्ट इंटेक या मॉडरेट सॉल्ट इंटेक रिकमेंडेशन तो 2 to 3 ग्राम पर डे की है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टिक टू दैट. बट आप जितना लो पे जाएंगे उतना अच्छा रहेगा. लो सॉल्ट डाइट रखिए, रेगुलर अपना वाटर इंटेक रखिए, फ्रूट्स लीजिए, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड एंड डोंट गो फॉर एग्जॉटिक थिंग्स. आई डोंट थिंक दीज आर वेरी हाँ फॉर आवर डेली. एंड दिस थिंग इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर एवरी for your healthy lifestyle, for good cardiac outcome. So don't take kidney as an isolated organ. It's not an isolated organ. आप जो भी करेंगे, जो हार्ट को फायदा करेगा, जो लंग को फायदा करेगा, लिवर फायदा करेगा, किडनी के लिए भी है. तो अगर आप एक हेल्दी लाइफ लेते हैं तो सिर्फ किडनी थोड़ी ना फायदा होगी, सब कुछ ओवरऑल बॉडी फायदा करती है. और अगर आप ये सोचोगे नहीं साहब कि हम, चूँकि बॉडी इज अ होल सिस्टम होता है, उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है कि किडनी अलग है, हार्ट अलग है, उधर है, सब आपस में रिलेटेड. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन क्रॉस टॉक होता है. तो अगर आप बेसिकली जो सिंपल चीज़ों को फॉलो करिए, डोंट गो फॉर एग्जॉटिक थिंग्स एंड डोंट फॉल प्रे टू exotic things, because no, sometimes they may harm your kidneys, which may, often on we see many young children, जो बच्चे 17-18 साल की जो सडनली जिम जाना शुरू कर दिए, फिर वो प्रोटीन पाउडर भी ले रहे हैं, कुछ डिहाइड्रेशन भी हो गया, तो दैट लीड्स टू समटाइम दैट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस आर देयर. और लास्ट में अगर कभी किसी को किडनी डैमेज हुआ, सपोज करिए वी कॉल इट एक्यूट किडनी, जो पेशेंट रिकवर कर गया है, इवन दे नीड रेगुलर फॉलो, एटलीस्ट once in 6 months फॉलो वेरी अननेसेसरी. बिकॉज आपकी जब किडनी डैमेज होती है और किडनी रिकवर कर गई, सपोज करिए आपका किडनी नॉर्मल आ गया, इट डजंट मीन कि किडनी 100% रिकवर कर गई. ये है कि किडनी आपकी 50% ज़्यादा रिकवर कर गई तो क्रेडिन डाउन हो जाता है. तो यू नीड रेगुलर फॉलोअप. बट वही है कि फाइनली आपको रेगुलर फॉलोअप रखना है, अननेसेसरी मेडिसिन नहीं लेनी है, लो सॉल्ट डाइट लेनी है. तो सिंपल थिंग इज़ लो सॉल्ट डाइट. समटाइम्स ये बहुत लंबा डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन होता है, तो हम लोग से पेशेंट पे सब इतना लंबा डाइटिशियन ने आपके लिए करना क्या है, तो मोटा मोटा यही कि आप वेजिटेरियन है, नमक कम खाइए, दैट्स इट. उससे काफ़ी कुछ मैनेज हो जाएगा. अगर आप ओवरऑल कोई और कुछ नहीं करना है इसमें आपको. Really had no idea about कि किडनी इतना मेजर रोल हमारी बॉडी में प्ले करता है कि सारा इंटरकनेक्टेड है अभी तक. Thanks to you. Thank you so much, Doctor. We had a lovely session today, and very insightful, I must say. Thank you. Very knowledgeable. It's really pleasure for me to have a discussion with all of you. Thank you. As we come to an end of another episode, one message stands out very clearly. Kidney health is something many of us tend to overlook until it starts affecting us in everyday life. But the good news is, through early diagnosis, awareness, and healthy habits, timely medical care, many complications can be prevented or managed effectively. Regular health checkups, staying physically active, drinking adequate water, eating mindfully, controlling blood sugar and blood pressure, managing stress, and listening to your body are not just medical recommendations, they are investments in your future. A heartfelt thank you to Dr. Anurag for sharing such valuable insights and helping us understand kidney diseases, dialysis care, and the importance of prevention
and awareness. We extend our sincere gratitude to the doctor for taking the time to join us today and for enlightening us with their expert advice and perspectives. Thank you for tuning into Navya Samvad. We will be back soon with many more exciting and engaging episodes about various aspects of life. Until next time, goodbye and stay healthy. See you in the next episode.